बेंगलुरु के लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में ग्रेजुएशन डे का जश्न। बीकॉम और बीबीए स्टूडेंट्स 2021-24 बैच का ग्रेजुएशन डे। प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान की सदारत, महफिल निसा की सदर शाइस्ता यूसुफ, हीरा फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन हसन पन्नान मेहमानाने खुसूसी चीफ गेस्ट के तौर पर इस यादगार जलसे में शामिल थे। कॉमर्स और मैनेजमेंट के एचओडी डॉक्टर सज्जाद पाशा, एमकॉम की पीजी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कविता वानी व दीगर ग्रेजुएशन डे में मौजूद थे। इस खूबसूरत मौके पर तमाम स्टूडेंट्स को ये पैगाम दिया गया कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। जी हां दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से डिग्री मुकम्मल करने वाले इन तमाम नौजवानों के लिए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बस यही पैगाम था कि वो बुलंद हौसलों, बुलंद अज़ाइम, बुलंद मकासिद के साथ आइंदा की जिंदगी का सामना करें। नाकामियों पर हरगिज मायूस न हो, बल्कि पूरे जोश व कॉन्फिडेंस के साथ अपने कदम बढ़ाएं। काबिल और सलाहियत याफ्ता नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। हार्ड वर्क, मेहनत, कॉन्फिडेंस और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने वाले हर नौजवान के लिए कामयाबी कदम चूमेगी। लिहाजा ग्रेजुएशन डे के मौके पर तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। The chief guest of and dignitaries will be watering the plant as a symbolic gesture of inauguration this graduation day. I request them all to guidance of our beloved principal, Janab Mohammad Manzoor Noman sir, our college has achieved the NAC A grade. Though it was a tough competition, then too under his leadership, as I have seen that it was his dedication as well as our respected teachers, teaching as well as the non-teaching staffs, hard work also. As well as for our juniors, a new course has been implemented in our college, BCom Logistics. It was also known as a tough competition. Many colleges doesn't got this opportunity to get this type of facility into their colleges. Within hundreds of colleges, our college was the one. In this Atinagar area, in Bengaluru itself, few colleges have got the opportunity into this. I stand today to the brink of new chapter in my life. I am filled with immense gratitude for all the peoples who have contributed significantly to my journey. To our principal, Dr. Mohammad Manzoor Noman sir, I thank you for your unwavering support and leadership. Your vision has always inspired us to aim higher and achieve more. I am deeply thankful to the head of the department, Dr. Sajjad Pasha sir, and the professors for your guidance, knowledge and encouragement. You have not only imparted education but also shaped our characters, teaching us lessons that goes far beyond the classrooms. To my dear friends, thank you for the memories, the laughters we have faced, challenges, celebrates, success, the grown in the way we never imagined. To the non-teaching staff, your hard work and dedication have made our
classes, colleges, your life smoother and more enjoyable. Your behind and the scenes efforts are that the huge batch of BCom and BBA from the year 2021 to 2024 is moving away of the college after having completed your graduation. Why I said huge batch? Because the strength of your batch is very big in the history of Lal Bahadur Shastri Government First Grade College. During your batch, we had more than 250 students for BCom alone and more than 150 for BBA. Altogether, it was more than half of the strength of our college. So for that reason, I tell huge batch is moving out of the college. Really, it's a matter to be proud. And in fact, you're all in the mood of joy and happiness. ये आपका क्या फायदा रहेगा? पहली बात तो बहुत खुशी हुई मुझे देखकर कि बहुत सारी लड़कियां वहाँ थी, और ये देखिए कि सबसे अच्छी बात ये है कि इन बच्चों स्टूडेंट्स ने काम किया है, स्टूडेंट्स ने सर्टिफिकेट शाया करवाया, स्टूडेंट्स ने पार्टी की, स्टूडेंट्स ने जमा किया। ये कब होता है? जब आपका प्रिंसिपल सही हो या आपकी फैकल्टी सही हो या आप लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और मैं यकीनन कह सकती हूँ कि इसमें ख़वातीन का हाथ ज़रूर रहा होगा, कि ये ख़वातीन बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम करती है, और उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद ये लड़के भी इतना नहीं कर पाते। दोनों का बराबर का हक था, लड़के भी स्पीच दे रहे थे, लड़कियां भी स्पीच दे रही थी, और मैंने सुना है कि सबके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, ख़वातीन के भी अच्छे आए हैं। उनके लिए एक ही पैगाम है कि सारी दुनिया में जितने भी ख़वातीन लड़कियां देख रही हैं या लड़के देख रहे हैं, उनके लिए है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आप ये सोच कर नहीं बैठ जाए कि हमारे पास पैसा नहीं, ये सोच कर नहीं बैठ जाए कि हमारा जहन कमज़ोर है। किसी का भी जहन कमज़ोर नहीं होता है, बल्कि उनको मेहनत करनी पड़ती है, कुछ किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन नतीजा आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा आया है। अब नैक में यहाँ के कॉलेज ने जो किया है वो आसान बात नहीं थी, इसमें भी बहुत सारे सभी लोगों की मेहनत होती है। ये बात होती है कि जब ग्रुप बहुत अच्छा हो तब तरक्की होती है। हमने हमारी महफिलों में सामने भी यही किया है और हम भी कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा भी ग्रुप मजबूत नहीं होता तो शायद हम भी आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो सबके लिए एक ही बात है कि यूनिटी में ही आपकी कामयाबी है। सब मिलजुल कर रहें और एक साथ काम करें, जिससे जो हो सकता है वो आगे बढ़कर आए और अपनी सोसाइटी को कामयाब बनाए। जो पढ़ाई में पीछे हैं, कहीं पढ़ने नहीं होता है, उनको इधर लाया गया, और जो 30-35% मार्क वाले भी अभी डिस्टिंक्शन के साथ पास हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज इट्स ए गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज नहीं है। बहुत ज़्यादा फीस दे के पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सैलरी दे के टीचर्स रखता है, वैसा नहीं है। ये मामूली कॉलेज है, लेकिन बच्चे अच्छा पढ़ते हैं। बच्चों को हमारा ये एडवाइस है कि पैसा नहीं है, हम गरीब है, हम कोई बिजनेस नहीं कर, ऐसा नहीं सोचना। मैं इससे पहले भी बात में बताया हूँ, सबसे गरीब आदमी रहे, लेकिन डिटर्मिनेशन होना चाहिए और ईमानदारी होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। ये तीनों है, बगैर पैसे से आप बिजनेस शुरू कर सकता है, उसके आपका दिमाग इस्तेमाल करो। जैसा इन्फोसिस है, वो तो बहुत छोटा अमाउंट से स्टार्ट किया था, अभी दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी में एक है। तो ये मिसाल है। इससे पहले मैं भी और एक मिसाल तो उनके सामने रखा था। जी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ताला जब मदीना आए तो उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, लेकिन वो जब उनका इंतकाल हो गया तब उनका इंडिया का आपका 100 करोड़ रुपए का बराबर पैसा था। उनको लोग बोले हम पैसा देते हैं आपको, बोला नहीं हमको किसी का पैसा नहीं चाहिए। वो खुद मार्केट में मुझे मदीना का मार्केट दिखाओ, तो मार्केट गया तो वहाँ से ये तो होते जो आदमी जब ईमानदार मालूम होता है तो आदमी लोग उनको चीज़ देते हैं, जाओ तुम्हें ये लीजिए, जाके बेच कर पैसा लाओ। तो ये ऐसा ही ये शुरू हो जाता है। तो अभी जो IT कंपनी हमारे यहाँ ज़्यादा लड़के जो पढ़ते हैं, तो IT कंपनी का BCA कोर्स वगैरह जो है वो 2-3 आदमी मिलकर वो कंपनी शुरू कर सकता है।
हमारे मलयाली हल्के में बहुत सारे आईटी कंपनी खुद शुरू किए हैं, सब बहुत बड़े बड़े लोग नहीं थे, तो यही उनको बोलने का ईमानदारी, हार्ड वर्क है करेगा और डिटर्मिनेशन, पीछे हटने का नहीं, कभी पीछे हटना नहीं, तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। क्या इरादा है ओके, कि अस्सलाम वालेकुम। इधर आए थे स्कॉलरशिप के लिए? जी, स्कॉलरशिप तो जैसा आपको मालूम है तो हीरा फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत हीरा वेलफेयर एसोसिएशन स्कॉलरशिप देता है। हम तो तकरीबन हमारा ये साल का बजट 5 करोड़ है, लेकिन 2 करोड़ कलेक्शन हुआ है इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे ये सब जो है गरीबों को देने के लिए। और हमारे पास कोई बहुत बड़ा सैलरी देने वाला या हमारा इसमें से कोई अपना कार यूज़ करता है या ऐसा कुछ भी नहीं, सब वॉलंटियर्स है हमारे पास। हम कलेक्ट करता है ज़कात का पैसा, ज़्यादा बिजनेस वाले से ज़कात का पैसा कलेक्ट, लेकिन हमारे पास जो कलेक्शन होता है वो बहुत बहुत छोटा अमाउंट है। बेंगलुरु के लोग अगर ज़कात का पैसा और ज़्यादा हम देंगे 100 करोड़ भी बन सकता है। इंशाल्लाह हम थोड़ा दिन के बाद जो है एक इंटरनेशनल ज़कात कॉन्फ्रेंस यहाँ रखने वाला है इंशाल्लाह। सर ये तो कॉलेज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? ये स्टूडेंट्स के लिए तो जैसा मैंने बताया खुद काम करना है, हार्ड वर्क करना है, इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएगा इंशाल्लाह, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। क्या पाएगा? लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में कई कोर्सेस हैं, बीकॉम है, बीबीए है, बीसीए है, बीए है, बीएससी है और फिर एमकॉम भी है। आज जो हमने प्रोग्राम मुनक़द किया वो तलबा की जानिब से था। बीकॉम और बीबीए जो फारिगीन हैं इनकी जानिब से ग्रेजुएशन डे मनाया गया, और इस मौके पर तलबा ने अपने ख्यालात का भी इज़हार किया कि 3 साल यहाँ रहकर उन्होंने क्या कुछ पाया और किस मुकाम पर वो अब हैं, और उनकी फीलिंग्स, उनके जज्बात, एहसासात और उनके जो ख्यालात थे वो हमने सुने। और इसी के साथ हमारे मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ मैडम और हसन पन्नन साहब भी जो कि हीरा फाउंडेशन के ट्रस्ट के चेयरमैन हैं वो भी तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है, खुशी की बात है, मसरत की बात है कि हम अपने कॉलेज में प्रोग्राम करते हैं, दूसरे अफराद जो मुख्तलिफ फील्ड्स में अपनी खिदमात का लोहा मनवा चुके हैं उनको भी हम मदवू करके हमारे यहाँ जो काम हो रहे हैं वो बताना चाहते हैं। हमारा ये मंशा है कि हमारे काम जो तलबा की जानिब से अचीवमेंट्स हैं, असातिज़ा की जानिब से जो खिदमात हैं, और एज ए प्रिंसिपल मेरी जानिब से भी जो तलबा की हत्तुल मक़दूर खिदमत हुई है तमाम आपके सामने लाया जाए, और आपकी जानिब से भी कॉलेज को अगर कुछ इमदाद और उनकी जानिब से दे सकते हैं और गरीब तलबा में स्कॉलरशिप वगैरह की वो तकसीम कर सकते हैं तो वो भी। आज हमने हर एक तालिब इल्म के चेहरे पर मुस्कान देखी है, इसलिए कि 3 साल मेहनतें की, मशक्क़तें की, पढ़ाई की, इम्तिहान दिया, उसके बाद उन्होंने आज इस दिन को मनाया है बड़े जोश के साथ, जज्बे के साथ, खुलूस के साथ, प्यार के साथ, और ये यादगार जो तकरीब है, प्रोग्राम है, उनकी ज़िंदगियों के फूलों में हमेशा ये महकते रहेंगे ये यादें, और उनके यादों के गुलदस्ते में ये ताज़ा रहेंगे, और वो हमेशा इस बात को अपने जहन में रखेंगे कि असातिज़ा ने उनको क्या कुछ बनाया था, वो क्या थे। हमने देखा कि अभी एसीपी साहब ने जब फर्स्ट ईयर्स का प्रोग्राम में कुछ सवालात किए तो बच्चे कुछ ऐसे थे कि जवाबात नहीं दे सके, लेकिन ऐसे बच्चों को जो 35% मार्क्स लेके फेल होके भी पास होके आते हैं उनको हमने दाखिला देते हैं, और फाइनल ईयर में आपने देखा कि वो किस काबिल होते हैं, किस तरह रवानी के साथ बोलते हैं, किस तरह हर सवाल का जवाब देते हैं। तो ये हमारे कॉलेज की एक बहुत ही खूबी है, खुसूसियत है। अक्सर कॉलेजों में ये देखा जाता है कि 70 मार्क्स 80 मार्क्स कट ऑफ परसेंटेज रख दिया जाता है, ऐसे बच्चों को लेकर अच्छे परसेंटेज निकाले जाते हैं, रिजल्ट्स अच्छे निकाले जाते हैं, लेकिन हम उन बच्चों को जो फेल होके भी पास आते हैं, 35% है, 40% है, उनके ऊपर मेहनत करके फाइनल ईयर में वही बच्चे डिस्टिंक्शन में आते हैं। ये बहुत बड़ा हमारी जानिब से, कॉलेज की जानिब से, असातिज़ा की जानिब से अचीवमेंट है। तो इसका एहसास करते हुए आज हमने प्रोग्राम का इनेकाद किया। एक एडवाइस क्या है सर, अब इसके लिए क्या मैसेज? हमारी जानिब से कई जॉब फेयर्स मुनक़द किए गए, और इसी के साथ साथ दूसरी कंपनियों से हमने जो तय किया है वहाँ भी मौक़े हमने जॉब्स के फराहम किए। बहुत सारे बच्चे पीजी करना चाहते हैं,
तो पीजी के लिए भी हमारी जानिब से गाइडेंस है, हमारे पास यमकाम है। लेकिन जिस तरह पीजी में यूजी में हम दाखिला रास्त तौर पर देते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि खासकर यमकाम के लिए तो अप्लाई करना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। वहां से अगर वो परसेंटेज की बुनियाद पर सीट सैंक्शन होती है तो उनको यहाँ दाखिला मिल सकता है। हमने देखा कि हमारे कॉलेज के 6-7 बच्चे यहाँ दाखिल होते हैं, बाकी दूसरे परसेंटेज की बुनियाद पर कैटेगरी में रिजर्वेशन जो होता है उसकी बुनियाद पर उनको दाखिला मिलता है। 30 सीटें हमारे पास एमकाम के लिए हैं और हमने उन्हें गाइड भी किया है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो हम रहनुमाई करेंगे, इसलिए कि हमारे पास कई कंपनीज के एड्रेस हैं, रास्त तौर पर ताल्लुकात हैं, इसकी बुनियाद पर हम आपको जॉब भी फराहम करेंगे। My academic journey at LBS Government First Grade College to better ourselves and society. I commit to uphold integrity, pursuing excellence and contributing positively to the world around me. May my endeavor be guided by empathy, continuous learning, and ethical leadership. Today, I embark on a new chapter armed with the values instilled during my academic journey at LBS Government First Grade College. Just I start my feeling to exchange with the students of this college as I am humble member of a charity organization. Before I am giving the details of our activities, I advise our students here are, first of all, you should be always honest. You should be always honest. Don't lie, whatever the situation may come. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I will repeat again as Prophet Muhammad. I will say Rasul sallallahu alaihi wasallam. That is easy to say. In afterwards I will speak like this. Okay. Said, "Kulil haq, walau kana murran." Is meaning always speak truth, though it is bitter.
that means it may give you trouble, but you adhere to speak only truth. And the other things, my advice to the students, don't cheat anybody. Don't take bribe. That is very important. Don't take bribe, because in India it is very common taking bribe. Big bribe. Big means millions bribe. That you should not take. You have to pledge it. We won't take. Don't abuse others. गाली देने का, किसी को भी गाली नहीं देना. Don't trouble others. Even though you are in trouble, don't trouble others. Usually it's happened when you have a vehicle on the way, accident. It is very common nowadays. Bangalore, the traffic is too much traffic, so every time it happens. But don't abuse others. Don't trouble others. You just tell him, or your magnanimity, you show your magnanimity. Okay, I pardon you. That you say. Always be humble, polite and pious. Pious, the word I collected, that is taqwa. In Arabic say taqwa. The fear of God, that is taqwa. That is whatever you do here, you will see one day there. We are all created by God, and we will again resurrect. After death, resurrect. Every small thing is written in book. Every small thing. So you think that if I do any wrong with any person, you will get the punishment from there. That you keep in mind always. जैसे मैंने कहा कि खुशी क्या होती है, जब आप सुबह सुबह सलाम करते हैं या बाहर सूरज की तरफ देखते हैं, तो सूरज क्या करता है, हम लोगों को इतनी खुशी देता है, इतनी रोशनी देता है, और हमसे ये कहता है कि आप लोग भी मेरी तरह नूर बन जाओ और सबके लिए रोशनी दो. तो ये रोशनी सब जगह फैलनी चाहिए, सब जगह आनी चाहिए. नेचर क्या है? नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है. कुदरत हमें क्या सिखाती है? कुदरत हमें सिखाती है कि कैसे इंसाफ किया जाए, कैसे सबके साथ एक साथ रहा जाए, कैसे सबके साथ मोहब्बत की जाए. अभी आपने देखा होगा पौधे को पानी दिया था हमने, तो पौधे के बारे में I'll tell you one thing, कि if you plant or anybody will plant in the mud, चाहे वो गोरा है या काला है, लंबा है या छोटा है, गरीब है या अमीर है, लेकिन हर सीड आपको वही पौधा देगा. तो ये हमें नेचर सिखाता है. इसी तरह बहती हुई गंगा, बहता हुआ पानी, बारिश, हवा, हम सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है चीजें. तो इसका मतलब क्या होता है कि हम जहां भी हो देना सीखें, लेना नहीं. हर कोई सब कुछ दे सकता है. जब आप BBA कर रहे हैं या BSc पढ़ रहे हैं या जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आप ग्रेजुएट हुए हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद. लेकिन जो ही हम ग्रेजुएट होते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका दाखला जिंदगी में होता है. यू हैव टू फेस द लाइफ. कैसी लाइफ, वो अब आप पर डिपेंड होता है कि आप उस दरवाजे में दाखिल होने के बाद क्या करेंगे. यहाँ से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं. आपने सिर्फ ये टोपा सर पर नहीं रखा है, बल्कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है. आपको कहा गया है कि देखिए ग्रेजुएट होने का मतलब क्या होता है. एक कोर्ट आपके लिए इज्जत है और इस इज्जत को बरकरार रखना है. आइंदा आप कहीं भी जाएं. इंसान का मुकद्दर है, चलते ही रहो चलना इंसान का मुकद्दर है. ठहरोगे तो पाँव में जंजीर जन्म लेगी. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಎವ್ರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಂಡ್, ಅಂಡ್
from that end there will be a new beginning. Phoenix, a bird, when it lives so many years, but it burns into ashes. From that ash, new phoenix will generate, and that phoenix bird lives so many years, 100,000 years, million years, like that. There is a, where there is a end, there is a new beginning, and there is new beginning means there are challenges. उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज है. In intro also, many questions they will ask. We have conducted a program, a 2-3 skill-based program, in that we have prepared how to face the interview particularly, and moreover how to write the resume, because many students will write the resume letters. It is irrelevant. It is nothing to do with the company. But we have taught you in professional way, expert. Our director madam, Shobha madam, sent the team also, the experts team. They are also very dynamic and very knowledgeable and very experienced persons, and they have trained you. And everybody knows how to face the interview, and many people are having already jobs in their hands, and many people eagerly want to do their PGs. Anyhow, see, many things Shaista madam told and Hassan sir told. Shaista madam telling about the tree. What is that? A tree doesn't discriminate anybody without religion, without color, without creed, without knowing their family backgrounds. It gives shadow to everybody. Those who come to take rest, it gives shadow. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದು ಶಾಡು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದು ನೀನು ಬರಬೇಡ, ನೀನು ಬರಬೇಕು, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬಾರ್ದು,